हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईसी बोर्ड का जो है सोशल साइंस चैप्टर 24 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेशनल इंटीग्रेशंस एंड सेक्युलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें राष्ट्रीयकरण तथा पंथ निरपेक्षता के बारे में हम विशेष तौर पे यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विस्तारपूर्वक समझेंगे तो उनको काफ़ी जो है एमसीक्यू में हेल्प ये दे सकता है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईसी सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, secularism. Secularism, there's the most important terms here, secularism. Secularism has been one of the most disturbing of problem. It has continued to their threat to be national integration. Is it true that traditionally the Indian society has been a known communal since a century? It has been to the absorbing and assimilating some many religions and cultures. But it was during their British rule that colonialism was used as tools of divided Indians. This is the most important tools here, colonialism, to divide the Indians. The colonialism rules create a situation to convince Indians that primarily they were members of different religions and communities, and they must think and act differently. The constitution makers had to send their negative potential of colonialism, and that is why the constitution declared India to be a scholar state. India to be a scholar state. But today, no understanding to the big person. There is a India is the scholar state. But today, no understanding here political leaders here. Though their original constitution had many provisions to be promote secularism, there continued repairings of colonialism demanding and extension. This is important. Consequently, it is also made one of the basic pillars of Indian democracy, and the word secular was intended to be a permeable of the constitution by the 42nd Amendment in the 1976. This is important. The next point here, meaning of secularism. This is important, meaning of secularism. What does secularism mean here? This is the most important question. What does the means of secularism here? You may be come across with there are some people who will be say, I am secular because I do not believe in any religions. That's important. That I am secular because I do not believe in any religion. You may be also find some politician who said that what is reflected in the constitution is not true, but pseudo-secularism and pseudo-secularism mean false secularism. There is a pseudo-secularism means false secularism. However, it is a necessity to understand
that secularism does not mean wearing a religions or anti-religions. The term of secularism is used only for political purpose. In fact, secularism impels equality of all religions and religious to tolerance. It may be appreciated in the two contexts: state context and individual context. In the state context, it means that India does not have any official state religions. This is the most important word here. India does not have any official state religions. The government must not favor or discriminate against any religions. It's important. It must treat all religions with the equal respect. It's important. The religions are there must be treat all the religions to equal respect. All citizens, irrespective of their religious belief, are equal to the eyes of law. No religious instruction is imparted in a government or government-aided schools, but general information about all the established world religions may be imparted without giving any importance to any one religions or the others. In the individual context, it means Sarva Dharma Sambhava. Sarva Dharma Sambhava means equality respect for all religions. Every person has to be right to the preach and practice and propagate any religions they choose. Every citizen must treat all religions same respect of the all religions. This is the most important. You know that show on your screen there is a most important picture here. There are different religions, different things, different praise system. But these are the Indians. This is the most important for here. India has a secularism and freedom to all religions is accepted here. The next year, secularism in the constitution. You know that there is the most important here. The secularism in the constitution. As we have seen above, the various provisions of constitution ensure the India to be a secular state. The Indian constitution, though it is a permeable and particularly though there is a chapter on fundamental right and directive principle, has a create a scholar state based on the principle of equality and non-discrimination. This is important. There is a secularism in the constitution. Our constitution is provides here in a chapter fundamental right and directive principle has a create a scholar state and based on principle of equality and non-discrimination. Along with their principle of social and economical democracy, and secularism has been held to be one of the basic structure of Indian constitution. It has been reflected in their constitution primarily as value in the sense that extend support to our plural society. And secularism aims to be promoting coherence among the different communities living in India. This is the most important, giving us our constitution or secularism state in India. The next point here, secularism. It is a significance. This is an important point here. If there are constitutional provision and safety guard, it is unfortunate that all the Indians are yet to be truly secular. We have to experience communal audit at the regular interval. Even a very insignificant reason lead to be a communal tension and the violence. But secularism is simply not a simply for maintaining communal harmonies and the peace, but for the very extent of our nation. If you look around yourself, you may find that your friend, classmate, and others are nearby,
Residents believe in a practice religions that are different from your religions. They belong to the various castes. And how can you interact with them and be a good friend, classmate? No. If you do not respect religions and they do not do the same. We all know that India has a plural society, and it is therefore essential is that all the people develop respect toward the one and another and practice peacefully coexistence. This is the most important point here. Secularism and the significance here. आज हमारे देश में देखा जाए तो एक हवा सी उठी हुई है। धर्म के प्रति लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं, इसको कहाँ तक सही और क्या गलत है इस बात से जो है परे हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो कहते हैं हम भारतवासी हैं और हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी आज भारत को जो है बांटने का कार्य वो लोग कर रहे हैं जो सत्ताधारी हैं, जो बहुत ही बड़े ऊपर पद पे विद्वान हैं, और ये लोग जो है भारत को विभाजन करने के फिराक में लगे हुए हैं। आज बड़े बड़े मंच से वो भारत को एक कह रहे हैं, लेकिन उनका मकसद जो है भारत को बांटने का है। तो कहते हैं वो बात गलत है कि मुंह पे आपके राम है और बगल में छुरा है, क्योंकि ये कहावत बहुत प्रचलित है और आज की राजनीति में यही बात देखने को मिला है कि हम सबके समक्ष भारत को एक करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है भारत को फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। देखा जाए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पे पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत में ये समस्या सदैव बनती रहेगी, कि धर्म के प्रति लोग सदैव जागरूक ही रहेंगे। और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए ये सेक्युलरिज्म के नाम से जाना जाएगा, यानी अपना कोई धर्म नहीं होगा और किसी को भी कोई भी धर्म मानने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आज देखिएगा टेलीविज़न पे न्यूज़ में ऐसे डिबेट होते रहते हैं जहाँ पर जो है धर्म को उछाला जाता है और नामों को बदनाम किया जाता है, जो कि देखा जाए तो कदाचित सही नहीं है। कहते हैं धर्म एक ऐसे शब्द है जो हमारे लिए पवित्र है, महत्वपूर्ण है, और इस पर जो है हमें अधिक जो है बात विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म तो हमें अच्छे राह दिखाती है। और इस पर राजनीति करना, कहते हैं जो राजनीति कर रहे हैं वो कदाचित भारत की भलाई नहीं चाहते हैं। तो यही टॉपिक हमारा आया है आगे, पंथ निरपेक्षता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम सब ये जानते हैं कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय संकलन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, और आज के समय में दिन प्रतिदिन ये चिंता और भी गहरा होता चला जा रहा है। हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि भारतीय समाज में गैर सांप्रदायिकवादी परंपरा रही है, सदियों से अनेक धर्मों और संस्कृति अपनाते रहा है। आपने देखा होगा सदियों से अनेक धर्म आई, अनेक जातियां आई और सब विलुप्त होते चले गए। पहले के समय में देखा जाए तो वर्ग के वर्ण के रूप में विभाजित थे, यानी शूद्र, वैश्य, और आपको पता ही है ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो उस समय ये रूल रेगुलेशन थी धर्मों को बांटने का, तो छुआछूत की भी भेदभाव थी उस समय। लेकिन आज आ गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी। तो समय समय पे ये बदलता रहता है, लेकिन आने वाला समय में देखा जाए तो आज समाजों को दो वर्गों में बांटा गया है। देखा जाए तो तीन वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग कहलाएगा, एक मिडिल वर्ग कहलाएगा और एक गरीब वर्ग कहलाएगा। तो कहते हैं समय के साथ धर्म संस्कृति भी बदल रहे हैं, तो इंसान की सोच नहीं बदल रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये सांप्रदायिकता के लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। अंतलीन करते रहा है, किंतु ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ के लोगों ने बांटने के लिए सांप्रदायिकता का प्रयोग भी किया था। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज़ों की दाल यहाँ पर नहीं गल रही थी, तब अंग्रेज़ों ने लास्ट अपना हथियार यूज़ किया था, फूट डालो और राज्य करो की नीति। और इसके अंतर्गत उन्होंने कई वर्षों तक भारत में
जो है अपनी सफलता कायम रखी, यानी भारत पे उनका जो है दबदबा बना रहा। और जब तक हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे तब तक जो है अंग्रेज़ों की यहाँ पर बैठ बनी रही। लेकिन जब हिंदू और मुसलमानों ने, सिखों ने, सभी धर्मों ने ये बात समझ ली कि ये अंग्रेज़ों की नीति है कि वो हमें आपस में लड़ा के जो है भारत पे अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं, तब जाके कहीं भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज देखा जाए तो आज हमारे समाज में भी ये बात आज राजनीतिक नेता सब जो है बहुत ही खुलेआम यूज़ कर रहे हैं। और देखा जाए जो भारत के प्रतिनिधि होते हैं, जो कहते हैं पूरा भारत का रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो धर्मों के रिगार्डिंग चलने लग जाए तो भारत में एकता कहाँ से बरकरार रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि घर में अगर एक मुखिया है, अगर घर के मुखिया अगर अपने बच्चों के साथ भेदभाव करने लग जाएगा तो जर्नल सी बात है बच्चों में बगावत आ जाएगी। तो जब देश को रिप्रेजेंट करने वाले ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की गाना गा रहे हैं तो देश को एकता के सूत्र में कौन पिरोएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं ये प्रश्न साफ तौर पे कहता हूँ, बड़े बड़े लोगों से करता हूँ, ऐसा आप क्यों कर रहे हो। भारत कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी गई है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहेंगे, खुशहाली भरा जीवन जिएंगे, जिसको जो पसंद आएगा, जिस धर्म में जाना चाहे वो जा सकते हैं, किसी भी धर्म को अपनाने, किसी धर्म में जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। जब ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में साफ शब्दों में लिखी गई है तो आप एक धर्म भारत को क्यों बनाना चाहते हो और क्यों बार बार टीवियों पे अपनी जो है अच्छे खासे प्रचार दिखा रहे हो, भाषण दे रहे हो, ये गलत है। और कई लोगों के जो भावना है, मनों में भावना पैदा कर रहे हैं, वो गलत पैदा कर रहे हैं और इन्हीं कारणों से जो है सांप्रदायिकता की आग लग जाती है। तो आप जब इतने बड़े हो के ऐसे काम का जो प्रचार करोगे, जब देश को ऐसे बांटने की कोशिश करोगे तो भारत कैसे एक माला बन सकता है, संभव नहीं है। तो ये गलत बात है। कहते हैं उपनिवेशी शासकों ने इसके लिए विशेष परिस्थिति बनाई और भारतीयों को यह महसूस कराया कि वो अलग अलग धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं। यानी उनको पता था अंग्रेज़ों को कि इनको सिर्फ ये बात समझाना ज़रूरी है कि ये अलग अलग धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तथा उन्हें अपने अपने धार्मिक समुदाय के हितों पर ध्यान रखना चाहिए। और संविधान निर्माताओं की सांप्रदायिकता की नकारात्मक क्षमता का ज्ञान भी हो गया था। यही कारण है कि संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। देखिए, संविधान में साफ शब्दों में जो है भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। देखा जाए यद्यपि मौलिक संविधान में पंथ निरपेक्षता को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रावधान भी किए गए कि भारत की जो है मौलिक संविधान में पंथ निरपेक्ष को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश किया गया। लेकिन देश में होने वाले सांप्रदायिक गतिविधियों के कारण 1976 में इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया गया और संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष को संविधान की प्रस्तावना में जो है उद्देश्य के रूप में जोड़ दिया गया और इसे भारतीय लोकतंत्र का एक स्तंभ माना गया। लेकिन आजकल देखा जाए, आजकल कहते हैं सत्ता के मत में ये लोग जो है भारत को खंडित करना चाह रहे हैं और संविधान में बनाए गए रूल रेगुलेशन को भी खंडित करना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इनसे अब भारत बन जाएगी। कहते हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिन्होंने वो सारे दर्द को देखे, तब जाके इन्होंने संविधान का निर्माण करवाया, तो वो आज गलत साबित हो रहे हैं। और ये लोग पे तो मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि ये लोग उन्हीं को मानते हैं और उन्हीं को बनाए हुए संविधान को आज तोड़ रहे हैं। आज कोई भी न्यूज़ उठा के आप देख लो, कहीं भी टीवी पे चैनल बदल के देख लो, सब जगह जो है ये लोग भारत को हिंदुत्व, मुसलत्व, पता ना कैसे कैसे नामों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि गलत है। भारत देखा जाए तो संविधान निर्माताओं ने इसे जो है पंथ निरपेक्ष का नाम दिया था और इसको मजबूत भी बनाने की कोशिश किया गया था। लेकिन यहाँ तक आते आते इतनी चेंज हो जाएगी बात, शायद संभव नहीं है। नेता लोग ऐसे कह रहे हैं कि भारत कुछ सालों में विकसित हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है जब आपके विचार ऐसे रहेंगे तो शायद भारत विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत विकसित करने के लिए सभी व्यक्तियों की अहम भूमिका होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, कोई भी धर्म हो। अगर इन धर्मों में किसी को भी आप अगर नज़रअंदाज करते हो और उनके साथ गलत करते हो तो जर्नल सी बात है, हमारा देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। और इसका सबूत हमें आए दिन मिलता रहता है। सांप्रदायिक दंगा फसाद आप लोग देखते ही होंगे, और किसी देश में सांप्रदायिक दंगा फसाद होता रहे तो कैसे वो घर आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी घर में
आए दिन लड़ाई किसी न किसी बात पे हो रहा होता है, तो वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो दिन प्रतिदिन जो है डिक्रीजिंग होता चला जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जो घर के सारे सदस्य जो है तहस नहस हो जाएगा। तो ऐसा देश का साथ भी होता है। अगर हम सब आपस में लड़ने लग जाएं तो देश कैसे चलेगा। कहते हैं देश के जो प्रथम होते हैं, जो कहते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं व्यक्ति, और जो बड़े बड़े पद पे होते हैं उनके लिए सारे व्यक्ति जो है बच्चों के समान होता है। अगर वो बच्चों के साथ भेदभाव करने लग जाएं और किसी एक बच्चे पर ही ध्यान देने लग जाएं तो जर्नल सी बात है दूसरा बच्चा बगावत करेगा ही करेगा, जो देश के कल्याण के लिए कदाचित उचित नहीं रहेगा। अब हमारे समक्ष आया जो है पंथ निरपेक्षता का अर्थ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ कहते हैं क्या पंथ निरपेक्षता होती है, ये जान लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि संविधान में आखिर इसको पंथ निरपेक्षता का नाम क्यों दिया गया और इसमें ऐसी क्या बात थी जो आज के नेता लोग जो है इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं और अपनी सिक्का चलाने के जो है फिरात में लगे हुए हैं। देखा जाए तो इस अवधारणा का बदले कई बार धर्मनिरपेक्षता का भी प्रयोग किया जाता है और आपने कुछ व्यक्तियों को यह कहते सुना होगा कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। कुछ लोग कई राजनीति यह भी कहते हैं कि संविधान में कृत्रिम पंथ निरपेक्षता इंस्टीट्यूशनलिज्म का प्रावधान है, इसलिए पंथ निरपेक्षता का सही अर्थ समझना आवश्यक है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ धार्मिक धर्म विरोधी होना नहीं है। कृत्रिम पंथ निरपेक्षता का पद का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है सदैव। यानी मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, यानी मेरा कोई धर्म नहीं है और मैं सभी धर्म को मानता हूँ, ये विचारधारा होता है। कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहता है तो इसका मतलब हुआ कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, वो सभी धर्म को जो है से अलग है, वो नेचर को मानता है और नेचर ही सबसे बड़ा संविधान है। कहते कोई भी आप धर्म देख लीजिए, नेचर को ही प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि जहाँ से हमें हवा आ रही है, पानी आ रही है, वही सबसे बड़ी है। इसलिए पंथ निरपेक्ष सही अर्थ समझना काफ़ी जरूरी होगा। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ अधार्मिक और धर्म विरोधी विश्वास नहीं होता है। कृत्रिम पंथ निरपेक्षता पद का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए सिर्फ किया जाता है। वास्तव में पद निरपेक्ष का अर्थ से सभी धर्मों को समानता तथा जो है धार्मिक सहविषता है। इसका अर्थ को दो संदर्भ यानी राज्य के संदर्भ एवं व्यक्तियों संदर्भ में समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। राज्य संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का यह अर्थ है कि भारत का कोई औपचारिक राज्य धर्म नहीं है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ इशारा किया गया है। और ये मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि बड़े बड़े जो लोग होते जो पढ़ लिख के जाते हैं, जो बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, वो भी तो ये किताब पढ़ते होंगे, संविधान के भी उनका ज्ञान होगा। लेकिन जब उनके बातें हम सुनते हैं तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, सिर्फ देश में आग लगाने की बात उन्होंने सीखा है। जब यहाँ क्लियर लिख रखा है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है भारत का कोई औपचारिक राज्य धर्म नहीं है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोगों को सामान्य दृष्टि से देखना है। और मान लीजिए जो व्यक्ति पूरे देश का रिप्रेजेंट कर रहे हों, उनको तो ये विचार सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो राष्ट्र होते हैं। और जब राष्ट्र ही गलत सोचने लग जाए तो बाकियों का क्या। सरकारों को किसी भी धर्म पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये साफ शब्दों में संविधान में लिखा गया है कि सरकार को किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल देखिए राजनीति में कैसे सिक्का लोग जमा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आए दिन बोल बोल के एक दूसरे को धर्मों को गलत साबित करने पे लगे हुए रहते हैं। अरे धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो हमें अच्छे राह दिखाता है, हमें ये नहीं कहता कि हमें आपस में मारना चाहिए, काटना चाहिए। और आप लोग सिर्फ इतनी इसीलिए करते हो कि आप कैसे अपना सीट बचा सकते हो, और सीट बचाने के लिए किसी व्यक्ति के जान लेना ये सही नहीं है। आप सोचते हो कि आप सफ़ेद कपड़े पहनते हो इसलिए क्योंकि हमारा तो काम ही है कि मुर्दों के ऊपर बैठना, तो ये गलत सोच रहे हो। क्योंकि कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगता है, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का अपना कोई औपचारिक धर्म राज्य नहीं होगा, सरकार को किसी भी धर्म का पक्ष लेने की अधिकार नहीं है, और जो सरकार किसी धर्म की वकालत करता है उसकी सरकार 100% गिरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
न भी किसी धर्म की विरोधी है। सरकार न तो किसी धर्म को पक्ष लेगा और न ही किसी धर्म के विरोधी होगा। लेकिन आज देखा जाए राजनीतिक में तो हर एक व्यक्ति जो है, हर एक राजनीतिक नेता धर्म के ही आड़ में पड़े हुए हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक न्याय संगत है? ये बात आप बच्चे सोच रहे होगे, पढ़ते हो, देख भी रहे हो, सोच भी रहे हो। क्या आप ऐसी बातें समझ सकते हो कि जो ये बड़े बड़े नेता लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जबकि यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सरकार को किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना है, न ही किसी भी धर्म के विरोधी होना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संविधान में पहले लिख दी गई थी और संविधान लिखने वाले ने बात साफ साफ जान गए थे कि भविष्य में लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे और ये सिर्फ लोगों के सामने ये बोलेंगे कि हम देश को विकसित कर देंगे। जब आपके मन में ही सांप्रदायिक की भावना है तो देश विकास की राह पे कैसे चल पाएगा? राज्य सभी धर्मों को सामान्य मानना चाहिए। देखिए, राज्य जो होती है सभी धर्मों को साथ लेके चलना है, वो किसी एक धर्म के विरोधी नहीं है और उसके मन में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनका आदर करता है। देखिए सर, जो है राज्य सभी धर्मों को सामान्य मानता है और वो सभी धर्मों को आदर करता है, किसी एक धर्म की प्रचार नहीं करता है। सभी नागरिकों को चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कानून के सामने सामान्य होगा। सरकारी या सरकार के अनुदान से चलाए जा रहे विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये भी प्रावधान किया गया है कि विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन आज देखा जाए तो धार्मिक शिक्षा भी जो है विद्यालयों में दी जा रही है और कई बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है कि विद्यालय में धार्मिक शिक्षा देने की इजाज़त नहीं है, ये संविधान में लिखी हुई है। किंतु वहाँ विश्व के सभी धर्मों के बारे में सामान्य सूचनाएं दी जा सकती है, यानी धर्मों के बारे में सूचनाएं दी जा सकती है, बताई जा सकती है, लेकिन उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा करते समय किसी भी एक धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। अब देखिए, आप जिस धर्म के बारे में पढ़ेंगे आप उसी धर्म को जो अधिक मानेंगे, प्रायोरिटी भी उसी को धर्म को देंगे। लेकिन जैसे हम देखा गया है कि भारत किसी भी धर्म को जो है इतना अधिक महत्व नहीं देता है, ना किसी धर्म को जो है न मानने की इजाज़त देता है, यानी धर्म निरपेक्ष हमारा देश है। इसलिए स्कूलों में जो है धर्म के अंतर्गत शिक्षा देने की संपूर्ण मनाही है, क्योंकि भारत को एक धर्म में नहीं बदलना है। भारत तो कई धर्मों के देश है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सहानुभूति के साथ रहते हैं। व्यक्ति संदर्भ में पद निरपेक्ष का और सर्वधर्म संभाव है, अर्थात व्यक्तियों के द्वारा सभी धर्मों को सामान्य आदर देना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, लेकिन इतना तो कर अवश्य सकते हो कि आपका सर झुक जाए। क्यों? क्योंकि उसको सारे लोग मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, लाखों लोग मानने वाले हैं, और जिसको लाखों लोग मानने वाले होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा चुने गए धर्म को अवैध रूप से जो है मानने, आचरण और जो है प्रचार करने का अधिकार है। देखिए, आप धर्म का प्रचार कर सकते हो, मान सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं कर सकते। सभी नागरिकों को अन्य सभी धर्मों का वैसा ही आदर करना चाहिए जैसा वो अपने धर्म के करते हैं। बात सही है कि आपको वैसा ही धर्म का आदर करना चाहिए जैसे आप अपने धर्म को आदर करते हो। कोई भी धर्म व्यक्ति को दूसरे की अवहेलना करने का, घृणा करने की आज्ञा नहीं देती है। हमारे संविधान में इस बात को पुण्य खंडित किया गया है कि आप अवहेलना नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। अब चित्र में भी आप साफ देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 3 धर्म को दर्शाया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म विश्वास कर सकते हो, लेकिन दूसरे धर्म को जो है आप गलत नहीं कह सकते, ना दूसरे धर्म के प्रति कोई भी घृणा वाली भावना रख सकते हो, क्योंकि सबका धर्म सर्वोपरि है। जितना आप अपने धर्म से प्यार करते हो उतना ही दूसरे धर्म को भी सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर तो एक है, ईश्वर थोड़ी इतने सारे हैं। कहते हैं ईश्वर एक ही हैं और ईश्वर सर्वोपरि है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संविधान के पंथ निरपेक्षता। देखिए, हमने ऊपर देखा है कि भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में अपनी प्रस्तावना और विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देश तत्वों को अध्याय के माध्यम से भारत में
समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धांत पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया गया है। यानी संविधान बनाते समय इस बात को पुण्य ध्यान रखा गया था, क्योंकि हमने जो बंटवारा का एक बहुत दुखदायक परिस्थिति को देखा, उसे संविधान निर्माताओं ने साफ समझ लिए थे कि भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष बनाने की आवश्यकता है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, जब भी वो धर्म के प्रति जो कोई भी देश अपना एक मत रखेगा एक धर्म के प्रति, तो उस देश जो है कभी विकास के राह पे नहीं चल पाएगा। और दुर्भाग्यपूर्ण आज के राजनीतिक नेता इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं कि भारत को एक धर्म बनाने के फिराक में है, जो संभव नहीं है। और इसका फ़ायदा दूसरे राजनीतिक नेता उठा रहे हैं। कहते हैं कि जब ये ऐसे बोल रहे हैं तो हम उसके चले जाते हैं। तो ये राजनीति करना सही नहीं है। मैं एक बात सदैव कहता हूँ, जो भी राजनीति में सम्मिलित हैं, धर्म के प्रति आप कोई भी भाषण न दो, धर्म के प्रति कोई भी विचारधारा न दो, क्योंकि धर्म आपका नहीं है, हमारा क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हो, जिसको बहुत से लोगों ने चुन के भेजा होता है। तो आप कभी ये सोचा है आपने कि जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो सिर्फ एक धर्म के ही व्यक्ति आपको वोट देते हैं? नहीं ना, आपको तो सभी धर्म के व्यक्ति वोट देते हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? आप एक को उच्च मान रहे हो, एक को जो है निम्न दर्जा दे रहे हो, ये सही नहीं है। आप थोड़ा सा विचारों को कसौटी पे रख के सोचने का प्रयत्न करो कि जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो उस समय क्या मुझे एक ही व्यक्ति वोट देता है, एक ही जाति का वोट देता है? शायद आप गलतफहमी में हो, क्योंकि आप कभी अच्छे काम करते हो तो लोग आपसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और आपको हर धर्म के लोग जो हैं वोटिंग करते हैं। तो जब आप सत्ता में आ जाते हो तो फिर एक धर्म को प्रचार क्यों कर रहे हो? ये गलत है और ये संविधान में भी लिखा नहीं है। अगर संविधान आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार अवश्य पढ़ लें कि भारत किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और जो बड़े नेता लोग होते हैं उनको भी किसी भी धर्म से भेदभाव करने की कोई इजाज़त नहीं है। न राज्य का अपना कोई धर्म है, न देश का कोई धर्म है। हमारा धर्म सिर्फ एक है कि हम भारतीय हैं। अगर ये बात देखा जाए तो भारतीय संविधान के अपनी प्रस्ताव एवं विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देश तत्व के अध्ययन के माध्यम से भी भारत में समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धांत पर आधारित पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया गया है। अब इस बात का जो है मौलिक अधिकारों में भी चर्चा की गई है और इवन की राज्य के नीति निर्देश तत्व में भी ये सिद्धांतों को निर्धारित की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण करेगा और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ साथ पंथ निरपेक्ष को भी भारतीय संविधान को एक आधारभूत संरचना माना गया है। और इसके संविधान में प्राथमिक तौर पर एक मूल्य की तरह प्रतिबिंबित किया गया है ताकि यह हम लोग के बहुलवादी समाज को समर्थन दे और पंथ निरपेक्षता भारत के विभिन्न समुदाय के बीच समझौता को बढ़ावा दे रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पंथ निरपेक्षता का महत्व। संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षाओं के बावजूद सभी भारतीय अभी तक सच्चे अर्थों में पंथ निरपेक्ष नहीं हो पाए हैं। यानी देखा जाए वास्तविकता तौर पे तो भारत में अभी पंथ निरपेक्ष की भावना नहीं आई है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम काफ़ी समय आगे आ चुके हैं, आज़ादी मिले कितने साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे मन से जो है ये पंथ निरपेक्षता नहीं हो पा रहे, हम अलग नहीं हो पा रहे हैं और भारत को है जो एक नज़रियों से नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग के नियमित अंतराल में संप्रदाय दंगे का अनुभव होता ही रहता है। आए दिन देखिए दंगे फसाद होते रहते हैं धर्म के अंतर्गत, जो सही नहीं है। अगर मैं ये बात कहता हूँ साफ तौर पे कि हमारे भारत के नेता सब लोग धर्म निरपेक्षता को माने, पंथ निरपेक्षता को माने और एक किसी धर्म को प्रायोरिटी ना दे, तो भारत में दंगा फसाद होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा और भारत प्रगति के राह पे चल पड़ेगा। जब जब आप लोग धर्म के प्रति अपना निरादर व्यक्तित्व जाहिर करिएगा, तब तक भारत में सांप्रदायिक दंगे होते ही रहेंगे और सांप्रदायिक दंगा कराने का सबसे बड़ा श्रेय भारत के नेताओं को ही जाता है।
क्योंकि उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि उस राज्य का सरकार को गिरा देना। सरकार गिरेगी तब इनका सरकार बनेगा। ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है दोस्तों कि सांप्रदायिक दंगे का अनुभव हमें हमेशा होता रहता है। यहाँ तक कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों से भी सांप्रदायिक तनाव एवं हिंसा होती रहती है। भारत में देखा जाए तो इसका जो है एक लड़ी सी लगी रहती है, दंगा फसाद का एक लड़ी सी लगी रहती है और ये आए दिन चलती रहती है। तो इसका कारण क्या है कि हमारे संविधान कि इन्होंने नहीं पढ़ा है। जो बड़े बड़े नेता लोग तो बन गए हैं, चापलूसी से नेता बन चुके हैं, लेकिन उन्हें संविधान का 2 अक्षर भी नहीं पढ़ा है। मैं तो एक विश्वास कहता हूं कि सरकार में एक रूल रेगुलेशन चेंज होना चाहिए कि संविधान सभी को पढ़ाना चाहिए, कि बड़े बड़े हमारे जो पूर्वजों ने जो लिख के दिया है, रखा हुआ है, उन संविधानों को पढ़ें और समझें कि भारत एक है और भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। यह समझाना महत्वपूर्ण है कि पंथ निरपेक्षता सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति कायम रखने के लिए अनिवार्य है। जब भी आप अपने आसपास देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मित्र, पड़ोसी, आपके साथ पढ़ने वाले मित्र आपसे विभिन्न धर्म में विश्वास रखते हैं। जनरल सी बात है, स्कूल कॉलेज सभी में जाइए, सभी धर्म के लोग साथ में पढ़ते हैं, बड़े प्यार पूर्वक पढ़ते हैं, धर्म का आचरण करते हैं और वो अलग अलग जाति के भी हैं। जब तक आप उनके धर्म का आदर नहीं करते तब तक वो आपके धर्म का आदर नहीं करते हैं। बात सही है। आप देखिए सभी स्कूलों में देखिए, जाके कॉलेजों में जाकर देखिए, यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छे मित्र भी बन जाते हैं और पड़ोसी व्यवहार जैसे करते हैं। क्योंकि भारत एक बहुवादी समाज है, अंततः यह सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि वो एक दूसरे का आदर करें तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आचरण करें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सभी एक दूसरे को आदर करें और सभी एक दूसरे का जो है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आचरण करें। तो यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का भी आग्रह है कि आप सब मिल के रहें और जो ये सांप्रदायिकता का जो आग होती है वो ना लगाएं और सदैव भारत को जो है पंथ निरपेक्षता ही माने। अगर बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ है तो इस बात को जो है सरकार समझाने की कोशिश करे कि भारत एक है। जब सरकार ही गलती करने लग जाए तो उसको समझाने वाला कौन होगा, ये बात तो समझना ही मुश्किल है। फिर समझाने वाला जनता ही है, जनरल सी बात है। तो इसलिए भारत याद रखिए कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को सामान्य अधिकार दिया गया है। सब अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सब अपने धर्म के आदर सम्मान कर सकते हैं और दूसरे भी धर्म के जो है आदर सम्मान करने का प्रावधान इसमें सुनिश्चित किया गया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, नॉलेजेबल था, समझ वाली थी। कहते ये समझ लेते हो तो आपका जो है भारत के प्रति जो है नज़रिया ही बदल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया और सच्चे मन से आप देश की सेवा करना चाहते हो या त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि जब ये बात आपको समझ में आ गई तो हर एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। कहते हैं पढ़ाई के माध्यम ही समझ का माध्यम बनता है। जब पढ़ाई हम करते हैं तो हमारे जो नेत्रों पर पड़ी हुई धूल साफ़ हो जाती है और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति का साफ़ हो और भारत जो है तरक्की के राह पे चले, ना कि ये सांप्रदायिक दंगे फसादों में अपना जीवन व्यस्त करे, क्योंकि इससे न जाने कितने बच्चे, कितने माँ, कितने लोगों को हानि पहुंचता है, इसका कल्पना करना संभव नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करके ही आप जो है एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा सकते हो, क्योंकि ये सिलेबस के साथ साथ एक अच्छी बातें भी हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शायद प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।